Hello guys and very welcome to you all. As you already know guys that in the last video we have completed the basic introduction of Python Tkinter. In that you have understood these concepts like what is Tkinter, why we use Tkinter, what is widgets, how many types of widgets are, what is GUI, what is the example of Tkinter. So all these things we have already discussed in the previous video. So now in this video we are going to covering up the next thing, that we have to do the demo, we have to perform the example that we have discussed earlier. We will do these example in platform, like in the integrated GUI. It means either you can do in the IDLE or you can do in the PyCharm, or you can also use this into Jupyter Notebook. So you are having too many platforms here. But before starting all of these guys, I just wanted to revise something that you might get to know, that because as you are beginner, so you might get confused any time. So I'm just going to revise everything that we have studied in the past video. If you're not able to understand, then please go in the previous and see the last video on Tkinter basic introduction. So we'll get to know that what is Tkinter, why we use Tkinter, basic things in a detailed way. So you will get a good command on the basic introduction. So now when we talk about the what is Tkinter, why we use Tkinter, so basically हम Tkinter का use क्यों करते हैं? We use Tkinter for creating a graphical user interface where you as a user can perform any operation that you wanted to do. या फिर आप एज ए यूज़र उस ऑपरेशन को परफॉर्म करो, या आप किसी और के लिए प्रेजेंट कर रहे हो तो वो ऑपरेशन उसमें कर सके. सो Tkinter इज यूज टू बिल्ड दिस काइंड ऑफ application. Either it is desktop based or it is mobile based. It depends upon the coding. Now if we talk about the GUI in Python, so GUI और Tkinter का कॉन्सेप्ट एक दूसरे से काफ़ी लिंक होता है, बिकॉज आप GUI बनाते हैं तो वो कहीं ना कहीं Tkinter का ही एक पार्ट है. एज जैसे कि आप बनाते हो जावा में, बाकी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में. सो दीज आर सम वेरी लिंक्ड थिंग्स. Then we are coming for the widgets in Tkinter. So when we talk about the widgets in Tkinter, so widgets हमारे कौन कौन से हो सकते हैं, like text box, list box और ऐसे ही काफ़ी सारे widgets हैं. widgets से याद आया गाइस कि लास्ट टाइम आप में से ही किसी ने एक कमेंट किया था, क्वेश्चन पूछा था that if you wanted to get the user name in text box and what are the example of list box. So guys text box में आप टेक्स्ट बॉक्स को एज ए यूज़र नेम नहीं कर सकते, बिकॉज आप अगर यूज़र नेम लिख रहे हैं उसके बाद अगर आपको यूज़र नेम देना है तो दैट शुड बी टेक्स्ट बॉक्स. बल्कि आप यूज़र नेम को लेबल से ही इनकलकेट कर सकते हैं, क्योंकि आप उसको एडिट नहीं कर सकते. तो वो चीज़ कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है, वो चीज़ क्लियर नहीं हो पाएगी. तो इसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे. बट ये कमेंट आया था, ये क्वेश्चन था, इसलिए मैं इसको अभी बीच में बोल रही हूँ, बिकॉज ये एक चीज़ है जो हमें डिस्कस करनी है. ऐसे काफ़ी सारे डाउट्स आपके पास हो सकते हैं. सो इसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले हमें डिस्कस करना ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल. सो एग्जाम्पल मैंने बताया था आपको, हमने यूज़ किया था फ्रॉम Tkinter इम्पोर्ट स्टार. इसका क्या मतलब होता है कि फ्रॉम आपको कौन से लाइब्रेरी से क्या इंपोर्ट करना है, आपको Tkinter लाइब्रेरी से इंपोर्ट करना है स्टार. यानी कि आपको जितने फंक्शंस हैं, जितने भी उसके इनबिल्ट फंक्शंस आप उन सबको यूज़ करना चाहते हो, इसलिए हमने लिखा है फ्रॉम Tkinter इम्पोर्ट स्टार. सो इस पहली लाइन की एग्जाम्पल का आपको मतलब आई होप क्लियर हो गया हो. So basically the meaning of from, that from which library, which module you wanted to import something and what you wanted to import, हमने लिखा है star. It directly means that you wanted to input all the functions, all the built-in functions that present in the Tkinter library. Then we are having root is equals to tk. इसका मैंने आपको मतलब बताया था, it is used for window generating and all. Then we are having for the कोड गोज ये एंड रूट डॉट मेन. ये सब हम डिस्कस करेंगे डिटेल में अपनी प्रोग्रामिंग टाइम पे. देन अभी कौन कौन से आपके पास प्लेटफॉर्म हैं, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि प्लेटफॉर्म कौन कौन से हैं. पाईचार्म हो गया, जुपिटर नोटबुक हो गया एंड IDLE. सो हम IDLE को यूज़ करेंगे. सो फर्स्टली आपके पास अगर IDLE इंस्टॉल्ड है तो आपको कुछ इस तरीके से IDLE को ओपन करना है. यू फर्स्टली क्लिक ऑन द सर्चिंग बटन, press IDLE, right, type IDLE, then you will get this kind of a page. Now you have to click on the open button, then you will be getting your IDLE page here. Now when you see the IDLE, then you can see here that Python 3.10.0 is written there. It is showing the version of Python. सो आप जब भी वर्क करते हो IDLE पे तो मेक श्योर कि आप वर्जन ज़रूर देख लो, क्योंकि वर्जन को देखना ज़रूरी है. कि कुछ फंक्शंस, कुछ मॉड्यूल्स ऐसे होते हैं जो कि पुराने वर्जन्स में नहीं
इंस्टॉल्ड होते हैं, तो आप पुराने वर्जन काफ़ी यूज़ कर रहे होंगे तो आप मे बी इस लाइब्रेरी को यूज़ ना कर पाए। सो वर्जन देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अभी आप इसे देख रहे हो कि जो मैं कोडिंग जो यहाँ पे कर रही हूँ ये एक नॉर्मल सा शेल ही है, आइडियली शेल है, मैंने कोई पर्टिकुलर फाइल ओपन नहीं करी है, इसलिए मैं जो भी लिखूँगी कोड के अलावा वो आपको रेड कलर में शो होगा, बिकॉज इट इज़ नॉट अ कोड, वो उस रूल के खिलाफ है, दैट इज़ वाई। सो वी विल ओपन इट अगेन एंड वी विल सी द नेक्स्ट थिंग दैट अभी आपको यहाँ पे कोडिंग करनी है। तो हम पहले क्या करेंगे, हम पहले अभी दोबारा से फाइल को ओपन करेंगे, न्यू पे जाएंगे, फाइल पे जाएंगे एंड देन न्यू पे क्लिक करेंगे। तो अभी हमें फाइल बनाने के लिए गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जैसे मैंने बताया कि वर्जन ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, वर्जन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नाउ क्लिक ऑन दैट न्यू फाइल, देन यू विल गेट द न्यू फाइल, जहाँ पे आपको कोई नाम सेव नहीं होगा, इट शुड बी नेम विद द अनटाइटल्ड। सो न्यू फाइल बनाने का ऑब्जेक्टिव का ये होता है कि आइडियली में जब भी आपको न्यू फाइल बनाते हो, आपको एप्लीकेशन को रन करने से पहले, फाइल को रन करने से पहले आपको उसको सेव करना पड़ता है, अदरवाइज वो फाइल रन नहीं होगी। लेकिन आप पाइचार्म यूज़ करते हो, उसमें आप कोई चेंजेस करते हो तो आपको बार बार सेव नहीं करना पड़ता, लेकिन आपको आइडियली में बार बार सेव करना पड़ता है, क्योंकि आप हर बार कोड में कुछ चेंज कर रहे हो। सो यू नीड टू सेव इट अगेन एंड अगेन इन एवरी लूप ऑफ रनिंग कोड. So now we have opened the file and you can see the file name is untitled. So firstly we will write the code. So what should be our first code? So guys, very important thing is here that you are a beginner in Tkinter. So you should be aware that you can add comment in the coding. So you might get clear when you open this code again, you can be able to understand that how and for which purpose we have written this code. सो पर्पस पता होना चाहिए, उसके लिए हम कमेंट का यहाँ पे यूज़ करेंगे। सो पहला हमारा कमेंट होगा हैश इम्पोर्टिंग मॉड्यूल टिकेंटर। आप जो अब कोड नेक्स्ट लिख रहे हो वो किस लिए लिख रहे हो, ये कोड है आपका मॉड्यूल को इम्पोर्ट करने के लिए। कौन सा मॉड्यूल? टिकेंटर मॉड्यूल। नाउ ये कमेंट लिखना गाइस इंपॉर्टेंट इसलिए भी होता है बिकॉज कभी आप नहीं, कोई अगर आपका कोई पर्सन है जो आपको आप सिखाना चाहते हो पाइथन, सो यू कैन गिव हिम और हर अ गाइड दैट दिस कैन बी अ वे टू लर्न. So comment is very important that for a beginner. So we will writing here, I'm writing here the basic thing that hash sign is used for commenting in the Python. I hope this will be very clear because I have already explained it in the earlier videos also, not in this Tkinter only. In the name error, syntax error, those already I have explained. So now the next line is we having from Tkinter import star. अभी फ्रॉम टिकेंटर इम्पोर्ट स्टार का मतलब वही है सेम का, इसकी फ्रॉम का मतलब ये है कि आप कौन सी लाइब्रेरी से और क्या इंपोर्ट करना चाहते हो, तो हमें सारे फंक्शंस एक्सेस करने हैं, तो हमने लिखा है फ्रॉम टिकेंटर इम्पोर्ट स्टार. आई होप इस लाइन का मतलब आपको क्लियर होगा इस, बिकॉज अगर मतलब क्लियर नहीं होगा इसका तो फिर काफ़ी दिक्कत होगी बाकी कॉन्सेप्ट को समझने में. देन हम अब लिखेंगे जो नेक्स्ट कोड होगा हमारा, वो होगा हमारा रूट इज इक्वल्स टू टी के. जैसे मैंने लास्ट में भी बताया था गाइज आपको कि आप रूट की जगह कोई भी अल्फ़ाबेट लिख सकते हो फ्रॉम ए टू जेड, बट आप कोई कीवर्ड नहीं लिख सकते हो. फॉर एग्जांपल कीवर्ड्स क्या होते हैं पाइथन के? एंड, इफ, एल्स और from, do, while. You cannot use these kind of keywords while declaring any kind of variable. ये तो रूल गाइस वेरिएबल में भी होता है और सिमिलर ये रूल आपका इसमें भी होता है. तो बेसिकली चीज़ यहाँ पे आपके पास ये आके रुकती है कि अगर आप ये नहीं लिखोगे तो आप क्या लिख सकते हो. आप रूट की जगह आर भी लिख सकते हो ओनली, टी भी लिख सकते हो ओनली, बट यू कांट यूज द कीवर्ड बिकॉज इफ यू यूज कीवर्ड यू विल गेट द इनवैलिड सिंटेक्स एरर. सिंटेक्स एरर मिलेगा आपको वहाँ पे. उस सिंटेक्स एरर को हटाने के लिए आपको उस कीवर्ड को हटा के आपको नया कोई अल्फ़ाबेट लिखना होगा. सो आई होप गाइस कि इतना क्लियर हो गया हो. इफ़ you are clear then please let me know in the comment section, or if not then also please let me know guys. So हम अभी जो बनाएंगे यहाँ पे कीवर्ड एग्जांपल के लिए आपको मैं बना के दिखाती हूँ. फ्रॉम इक्वल्स टू टी के पैरेंथेसिस. So now we are having this code for running this application. Now you click on the run module or you can press directly F5. You have to save. As I have told you, you will get invalid syntax. See, you can see here invalid syntax is there. Now you have to click on OK. You have to remove from. देखो यहाँ पे आपको गुमराह करने के लिए इक्वल्स टू का मैं आपको इक्वल्स टू में रेड मार्क दिख रहा है, आप उसको हटाओगे तो भी आपका कोड नहीं चलेगा क्योंकि आपने आगे जो है वो फ्रॉम का यूज़ किया हुआ है. सो डेफिनेटली आपका प्रोग्राम नहीं चलेगा बिकॉज आपने कीवर्ड को बनाने की कोशिश की है एज अ वेरिएबल.
अभी आपने देखा कि हमने जो रॉन्ग कोड लिखा उसका क्या इनवैलिड सिंटेक्स मिला। अभी हम उसको सही करेंगे, रूट इक्वल्स टू टी के लिखेंगे एंड देन वी विल रन इट। रूट इक्वल्स टू टी के का मतलब ये कि आपने सही चीज़ को लिखा, आप रूट नहीं भी लिखते कुछ और लिखते तो भी आपका यही स्क्रीन जनरेट होके आता, जहाँ पे आपको टी के लिखा हुआ है, आपकी छोटी सी स्क्रीन है, ये एक आपका विंडो स्क्रीन है जो आपके रूट इक्वल्स टू टी के लिखने पर जनरेट हुआ है। तो बेसिकली जो मतलब है, जो यूज़ है इस रूट इक्वल्स टू टी के लाइन का, आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। नॉट clear then please let me know in the next comment section. Then you can see इसका स्क्रीन साइज काफ़ी छोटा है, राइट। अब इस स्क्रीन साइज को आप इंक्रीज कर सकते हो, आप ये सब कुछ कर सकते हो सिर्फ इस रूट इक्वल्स टू टी के नीचे आप कुछ चेंजेस करोगे। आप इसके विड्थ, हाइट, फॉन्ट, क्या टाइटल रखना चाहते हो वो सब आप चेंज कर सकते हो। यू जस्ट हैव टू लर्न दैट, जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड दैट। बट अभी आप बिगनर हो तो इसके लिए भी इतना नहीं करेंगे, अभी हम स्टार्टिंग में इतना ही देखेंगे जहाँ पे आप बेसिक से एक विंडो पेज बना सको कम से कम। इट इज़ अ वेरी बेसिक स्टेप। सो हमने कल क्या किया था, हमने कल एक बेसिक सा, हम ये मान सकते हैं कि कल आपने सिर्फ एक बेसिक 0 लेवल से स्टार्टिंग की थी, इंट्रोडक्शन जो ना। नाउ वी आर एट द फर्स्ट लेवल, जहाँ पे हम ये बेसिक जो देख रहे हैं कि आप कैसे एक विंडो कोड जनरेट कर सकते हो। तो हमारा पहला कोड तो हो गया कंप्लीट। नाउ नेक्स्ट वी आर हैविंग रूट डॉट मेन लूप, सो वो भी हो गया। अभी आप जब इसको रन करते हो तो आपके ऐसे आउटपुट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपका कोड एज इट इज रन होगा प्रॉपरली। सो आपने देखा कि 2 लाइन के कोड से भी आपका जो प्रोग्राम है वो रन हो गया, आपका विंडो जनरेट हो गया। अब आपको कुछ और इम्पॉर्टेंट चेंजेस करने पड़ेंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखनी पड़ेगी आगे प्रोग्रामिंग के लिए। जितने कोड्स होंगे आपके वीडियो जनरेट करने के लिए, बटन के लिए, बटन में जो फंक्शन डालना है उसकी कमांड के लिए, वो सारे ही कोडिंग आपके रूट इक्वल्स टू टी के पैरेंथेसिस के नीचे ही आएंगे, बिकॉज इट इज़ अ बॉडी पार्ट ऑफ योर कोडिंग। अभी रूट डॉट मेन लूप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है गाइस कि देखो हमने पहले रूट को ओपन किया, लिखा हमने रूट इक्वल्स टू टी के पैरेंथेसिस। नाउ वी आर एट द लास्ट लाइन ऑफ कोड, रूट डॉट मेन लूप। अभी अगर आप पैरेंथेसिस को ओपन करते हो, क्लोज करना होता है, आपने रूट को ओपन किया, आपको सिमिलरली उसको क्लोज करना है विथ मेन डॉट लूप, मेन लूप। ओके, अभी अगर आप रूट की जगह वहाँ पे कुछ और ऐसा वेरिएबल पुट कर देते हो, फॉर एग्जांपल मैंने आर डॉट मेन लूप लिखा है, डेफिनेटली मैच नहीं करेगा रूट से। आपने ऊपर कुछ और डिक्लेयर किया, आपने नीचे कुछ और डिक्लेयर किया, इट विल शो यू नेम एरर, बिकॉज आपने वो नेम डिफाइन ही नहीं किया कहीं, तो हाउ कैन यू यूज़ दैट गाइस। इट्स ऑब्वियस ना, अगर आपने किसी से परमिशन ली नहीं है आपकी किसी के सामान को टच करने की, तो यू कैन नॉट टच दैट ना। Similarly, r.mainloop will show you the error because you haven't declared, you haven't defined the r variable anywhere in your code till now. So definitely you are able to get the error. So it is a very basic thing that you should be getting name error. और name error कैसे आता है गाइस, name errors क्या होते हैं, name error किस किस केस में आ सकते हैं, इसके लिए एक प्रीवियस वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ। सो गाइस इफ़ यू डोंट नो हाउ टू रिजॉल्व द नेम एरर, हाउ you can get out of this name error, what kind of cases you get the name error, you can see that video in the I button. Click on the button and just go to the video and look up on the name error, even not the name error only, invalid syntax error, indentation error, and there are so many errors you might get when you do programming. So don't forget to watch all those videos so you will not get any error in upcoming time. So now we will run this code, so you can see that how can you get that error, how can we resolve that error in this session only. But it is very obvious guys, if you see the actual video, a detailed video in which you will be able to understand the use of this. So as I have already told you, you will get name error. You can see here name r is not defined. So आपने define नहीं किया, so you cannot use it anyhow. आपने नहीं डिफाइन किया, यू कैन नॉट यूज, बट आपका जो प्रोग्राम है, जो आपका विंडो है वो जनरेट हो रहा है, बिकॉज आपकी फर्स्ट लाइन से ही आपका ये विंडो जनरेट होता है। देयर इज़ नो कनेक्शन विद दिस लास्ट लाइन विद दिस विंडो। सो इसलिए आपका जो प्रोग्राम है वो चल रहा है, लेकिन आपको एरर मिला कि आपका वो कोड, वो लाइन नंबर 6 सही नहीं है। यू कैन सी इट वेरी क्लियरली, लाइन नंबर 6 in module. Name error, name r is not defined. So it directly show you that r is not defined because r is not, you haven't used r before in the coding.
You have used root. So अगर अभी आपने अगर रूट डॉट मेन लूप लिखा हो तो आपका कोड प्रॉपरली चलता, कोई एरर शो नहीं होता, बट आपने वो चीज़ नहीं लिखी इसलिए आपको यहाँ पे आर इज़ नॉट डिफाइंड नेम एरर आ गया। नेम एरर एक ऐसी चीज़ है गाइस कि आप कोई डिफाइन नहीं करते हो तो ही आपको इस केस में एरर्स मिलते हैं ऐसे। सो उसको रिजॉल्व करने के लिए बहुत सिंपल तरीका है, आपको नॉर्मली सब क्रॉस करना है, आपको जस्ट आर की जगह रूट लिखना है, उसको मैच करना है उसे, एंड देन यू कैन गो फॉर रनिंग। So here you will get the proper output. You cannot see any error in the screen. आपके सामने स्क्रीन है, कोई एरर्स नहीं. It means you have done with the coding. We are clear with the doubts. So I hope guys कि इतनी चीज़ें क्लियर हो गई हों. आज के लिए तो इतना ही guys, बिकॉज अभी आप बिगनर हो तो उसके अकॉर्डिंग जो बेसिक चीज़ें हैं हमारी, हम सीरीज वाइज पढ़ेंगे, इतनी कुछ जल्दी नहीं है guys. We are at the very basic level. So go slowly but go very better way. So in the next video we are going to learn each widget separately. So any other attributes related with that widget, we'll get to know how we can use all those attributes in our code. Meet in the next video. Thank you so much guys.